Good morning, friends. Once again, this is Professor Vikas Jain. I'm here to talk something more about your session. Well, in our last videos, we have already discussed certain things about your interview. In our last video, we discussed normally the first question of interviews, almost all the interviews. The first question of almost all the interviews is describe yourself. And in our last video, we discussed how to answer the question, describe yourself. Now, today, I'm here to share the certain things about your interview to make your pathway to success even more comfortable and easier. So, buddies, let's start, I suppose, and hope you will enjoy once again this journey. And before we move on, I'll just say to everyone, please subscribe this video so that whenever we come with the new things, obviously those are of your interest as well as of your advantages or the benefits, you will be having the notification so that you can watch that and you can get the maximum benefit out of the videos. So let's move. So well, buddies, I'm here with the second question. It may be asked, it may not be asked, but normally it is usually asked in almost all the interviews. So let's talk about the second question. Yes, just a minute. Let's move. So interview preparation with Professor Vikas Jain. Okay. So buddies, let us talk. Today, the question which we are going to have or which we are going to discuss is very important for almost all the interviews. For almost all the interviews. Now the question comes which? Yes. It is usually, what contribution could you make in this organization that would help you to stand out from other applicants? What contribution could you make in this organization? आप इस organization में क्या contribution दे सकते हैं that would help you to stand out from others applicants जो कि आपको बाकी applicant से अलग करता है और why should I hire you? अब मैं आपको क्यों हायर करूं या आप ऐसा क्या दे सकते हैं जो बाकी सबसे अलग हो? दोस्तों, इसके कुछ स्मार्ट आंसर भी होते हैं, कुछ स्टैंडर्ड आंसर भी हो सकते हैं, ठीक है? Like if it is asked, what makes you stand out from other applicants? So we can I'm sorry, we can say, well, sir, everybody is good, and when you have already just scrutinized everyone, or when you have just selected their resume and you have just scrutinized for them for the interview, shortlisted for the interview, it means that they all are good. What I have, I know, and what I have is this. थोड़ा सा ये स्मार्ट वे है अपने आंसर को देने का. बाकी लोगों में क्या है ये आप नहीं जानते हैं, तो आपने इसको थोड़ा सा बेटर तरीके से, स्मार्ट तरीके से आपने कहा कि सर, यदि आपने सभी को रेज्यूमे पढ़ने के बाद शॉर्ट लिस्ट किया है तो ऑब्वियस सी बात है कि वो सभी बहुत अच्छे हैं और तभी वो यहाँ आए हैं, एंड उनमें क्या है ये मुझे नहीं पता, मुझ में क्या है मैं वो बताना चाहता हूँ, और वो ये है, ये आपकी एक बहुत पॉजिटिव अप्रोच को शो करता है. क्लियर? सो दिस कैन बी द वेरी स्मार्ट वे टू आंसर दिस क्वेश्चन.
इसी क्वेश्चन को दूसरा तरीका था, व्हाई शुड आई हायर यू। इसमें हमने बाकी से कोई बात नहीं की, सिर्फ आपसे पूछा कि व्हाई शुड आई हायर यू। या इसी क्वेश्चन को सिंप्लीफाई करके ऐसे भी पूछा जा सकता है कि व्हाट आर योर स्ट्रेंथ्स। अल्टीमेटली व्हाई शुड आई हायर यू का अर्थ क्या हुआ, मैं आपको हायर क्यों करूं, मैंने आपकी स्ट्रेंथ बताइए, आपके अंदर ऐसा क्या है कि आपको आज हायर किया जाए, या आप इस ऑर्गेनाइजेशन को क्या देंगे। भाई आप इस ऑर्गेनाइजेशन को क्या देंगे, एक अपने रूप में एक अच्छा कैंडिडेट देंगे, और वह कैंडिडेट अच्छा क्यों है, ये आपको बताना होगा कि वह कैंडिडेट अच्छा क्यों है। अब थोड़ी देर के लिए हम आपको टाइम देते हैं कि आप सोच लें, तब तक हम आपको आंसर देते हैं। एक स्टैंडर्ड आंसर है, सर, as a fresher, I want to start my career with long-term commitment, and the criteria which you are asking for this job match to my profile. I assure you, if you hire me, I would prove myself as a valuable asset for the company. देखिए, आपने अभी अपनी स्ट्रेंथ नहीं बताई, स्ट्रेंथ आपको अपनी बताना है, क्योंकि हमने स्ट्रेंथ इसलिए यहाँ पर नहीं ली, हर व्यक्ति की स्ट्रेंथ अपनी अलग होंगी। यहाँ पर उस स्ट्रेंथ को बताने के पहले उस तक कैसे जाना है, हमने ये ब्रिज दिया है आपको। Sir, as a fresher, I want to start my career with a long-term commitment, and the criteria which you are asking for this job match to my profile. I assure you, if you hire me, I would prove myself as a valuable asset for the company. As I'm a diligent worker, if a work is assigned to you, I take breathe when it is completed. अब वो जो एक तरीका आपका नॉर्मली हुआ करता था, आप एक वर्ड यूज किया करते थे कि सर आई एम हार्ड वर्कर, आई एम वेरी कॉन्फिडेंट, उसको हमने बेटर तरीके से कहा कि सर, या आप अक्सर कहा करते थे कि सर आई हैव नो गिव अप अप्रोच, मैं गिव अप नहीं करता हूँ। तो इसी क्वेश्चन को हमने, या इसी आंसर को हमने थोड़ा सा बेटर तरीके से रखा कि सर आई एम डिलिजेंट वर्कर। आई एम डिलिजेंट वर्कर मीन्स मैं एक कठोर परिश्रमी व्यक्ति हूँ। अ वर्क इज असाइंड टू मी, इफ अ वर्क इज असाइंड टू मी, आई टेक ब्रीथ आफ्टर कंप्लीटिंग इट। यदि कोई काम मुझे असाइन किया जाता है तो मैं राहत की सांस तभी लेता हूँ जब काम को अधूरा नहीं छोड़ता। अपने आप में अधूरा छोड़ना एक नेगेटिव अप्रोच है, और हम दो तरीके से इस बात को कह सकते हैं कि मैं अधूरा नहीं छोड़ता या मैं पूरा करता हूँ। तो ज्यादा अच्छा तरीका होगा कि हम ये कहें कि मैं इस काम, जो भी काम मुझे दिया, विद दिस आंसर, ये जो आपको दिया है ये सिर्फ स्टार्ट है उस आंसर का, बाकी स्ट्रेंथ आपको आपकी बताना है। अब जैसे हो सकता है कि कुछ लोग बहुत अच्छे, अ, बहुत पॉजिटिव पर्सन हों, कॉन्फिडेंट हों, फिर भी हम ये कहते हैं कि कॉन्फिडेंस आपके आंसर पर झलकना चाहिए, उसे बताने की ज़रूरत क्या है? जब भी आपसे स्ट्रेंथ पूछी जाए, तो कोशिश कीजिए कि आप स्ट्रेंथ वो बताएँ जो आसानी से रिफ्लेक्ट नहीं हो पाती। जैसे कम्युनिकेशन स्किल्स, जब आप आंसर दे रहे होंगे तो ऑब्वियस सी बात है कि आपकी कम्युनिकेशन स्किल तो दिखाई दे ही रही होगी कि आई हैव गुड कम्युनिकेशन स्किल्स। दूसरा, आई एम कॉन्फिडेंट, आपके आंसर देने के तरीके से समझ में आएगा आप कॉन्फिडेंट हैं। इन वर्ड्स को अवॉइड करिए, और वो चीज़ें बताइए जो नॉर्मली दिखाई नहीं देती हैं। It will give you the more impact on your answers. Clear? चलो एक और तरीका देखते हैं। Sir, during my internship, my industriousness and ability to teach myself have been valuable assets to the company. My self-teaching abilities will minimize overhead costs, and my industriousness at targeted needs without prompting will set me apart from others. Besides it, one thing that always apart I from my engineering peer is my writing skills. I'm not talent, I'm likely to provide diverse viewpoint. अब ये थोड़ा सा ध्यान रखिए, आपकी पर्सनालिटी पर सूट हो तो ही इसे लें। कुछ लोग होते हैं जो अ, बहुत एनालिटिकल होते हैं, दे हैव नो टेस्ट ऑफ आर्ट्स। लेकिन ये आंसर हमने उनके लिए लिया हुआ है। आई प्रिपेयर्ड दिस आंसर, वन ऑफ माय स्टूडेंट्स, ही वाज इन वन एनआईटी, he was a student in an IIT and was preparing for the interview. He had the ability of writing, he was a poet, he used to write good poems during the classes. Once or twice he recited those poems, and I really found that yes, his writing skills can be a good asset for him at the time of the interviews. तो उसके उस क्वालिटी को हमने यहाँ पर इनकॉर्पोरेट करके इस आंसर को तैयार किया था। ड्यूरिंग माय इंटर्नशिप,
my industriousness and ability to teach myself have been valuable assets to the company. My self-teaching abilities will minimize overhead costs. मेरी अपने आप को सिखाने की जो क्षमता है वो कंपनी की ओवरहेड कॉस्ट को कम कर देगी. And my industriousness at the targeted needs without prompting will set me apart from others. और मेरी टारगेटेड चीजों को पर बिना प्रॉम्प्टिंग के, बिना किसी ना नुकर के फोकस करना मुझे बाकी लोगों से अलग बनाता है. Besides it, इसके अतिरिक्त one thing that always apart I, यहाँ पे आप मी कह सकते हो, apart me from my engineering peers is my writing skills. और मेरी एक चीज जो बाकी मुझे अपने इंजीनियरिंग साथियों से अलग करती है वो है मेरी राइटिंग स्किल. आई एम नॉट अ लिनियर नहीं हूँ. एक्चुअली आपका लेफ्ट ब्रेन एनालिटिकल पावर को बताता है, जबकि राइट ब्रेन आपकी आर्टिस्टिक और क्रिएटिव अप्रोच को बताता है. तो यहाँ पर हमने उसी वर्ड को थोड़ा सा यूज करते हुए कहा है, वाइडर टैलेंट आई एम लाइकली टू प्रोवाइड अ डाइवर्स व्यू पॉइंट. मैं एक टिपिकल लेफ्ट ब्रेन इंजीनियर नहीं हूँ, बल्कि मेरा जो आर्टिस्टिक टेस्ट है सोचने की क्षमता देता है, मुझे एक अप्रोच देता है और ये मुझे एक डिफरेंट नजरिया देता है. तो दोस्त, ये कुछ एक सिंपल तरीके थे इस क्वेश्चन को आंसर करने के. अब यदि आप इस क्वेश्चन के साथ कंफर्टेबल हैं, इन आंसर्स को सिर्फ अपनी गाइड के लिए यूज करना है, ना कि आपको उन्हें रटना है. डोंट मग अप दीज आंसर्स. ट्राई टू टेक दीज आंसर्स एज द गाइड टू यू. हाँ, इनमें से जो पार्ट आपको अच्छा लगे आप वो से अपने पास अपने साथ ले सकते हैं. हाँ, आंसर्स का कोई कॉपीराइट नहीं होता, नॉलेज का कोई कॉपीराइट नहीं होता है. तो यू कैन यूज देम, यू कैन इनकॉर्पोरेट दैट पार्ट इन योर आंसर्स. लेकिन कोशिश करिए कि स्ट्रेंथ वही बताइए जो आपके अंदर है, क्योंकि बेसिकली व्हाई शुड आई हायर यू, इस क्वेश्चन को पूछने का पर्पस ही ये है कि वो आपसे आपकी स्ट्रेंथ जानना चाहते हैं. तो होप आप सभी इस क्वेश्चन के आंसर के साथ कंफर्टेबल हैं, और सभी हमारे साथी जो कंफर्टेबल हैं, यदि आपको लगता है कि हाँ आपका पर्पस सॉल्व होगा इन वीडियोस के साथ, तो आप बिल्कुल हमारे कमेंट बॉक्स पर जाकर हमारे वीडियो में अपनी कमेंट सेंड कीजिए. आप जो भी हमसे पूछना चाहें आप पूछ सकते हैं. बस अपना क्वेश्चन हमारे पास भेज दीजिए, अपनी क्वेरी हमारे पास भेज दीजिए. हम कोशिश करेंगे कि उसे जल्दी से जल्दी आंसर कर सकें. तो बाय द टाइम, हैव अ वेरी गुड डे, एंजॉय योरसेल्फ. डे.